Today we'll start. So we have finished the general concepts of totipotency and cell as a unit of life. So today we will actually enter into the topic called cell biology. Okay, basically we have two terms, है कि नहीं? So in biology there are two terms with respect to cell. Okay, so the first term is called cytology, है कि नहीं? जो फर्स्ट टर्म है that is called cytology. So what is cytology? तो इसमें क्या होता है? In this science we study the ultra ultra structural details of the cells and various cell organelles. Okay, so in this we study the ultrastructural details. Structural and ultrastructural आप लिख सकते हो. Structural and ultrastructural details of the cells. Now, what is structural detail and ultrastructural detail? What is the meaning of this? तो structural ultrastructural detail का मतलब है TEM view, ये याद रखना. That is called transmission electron microscopic view. ये आपका structural detail, ultrastructural detail है. स्ट्रक्चरल डिटेल हम लोग आपका लाइट माइक्रोस्कोपी व्यू को कह सकते हैं. तो इसमें हम लोग जनरली क्या है, डाटाज पढ़ते हैं, हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, डिस्कवरीज पढ़ते हैं. बट देयर इज अनदर रिलेटेड टॉपिक दैट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. ओके, सेल बायोलॉजी. नाउ व्हाट इज सेल बायोलॉजी? So in this science, one reads about the detailed structure of the cell and its various organelles. Okay, in this science one reads about the detailed structure of the cell and its various organelles and their implication and their implications in the in this science one reads about the detailed structure of the cell and its various organelles and their implications in the physiology and pathophysiology of the cell and its organelles. समझ रहे हो? तो अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल एंगल से सेल को देखेंगे तो उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं. अगर जनरली आप स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में सेल को देखेंगे तो दैट इज योर साइटोलॉजी. तो जो चीज आप जनरली स्कूल्स में पढ़ते हैं या एनसीईआरटी एंड अदर कालू में पढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली द साइटोलॉजिकल डिटेल्स. सो देयर आवर जस्ट बिजनेस इज टू फिनिश द टॉपिक. सो वो तो हमारा अभी तक खत्म हो चुका होता. बट एक्चुअली वी रीड सेल बायोलॉजी because I really want that my students should be very strong in cytology and molecular biology. So that is why cell and molecular biology आपका सबसे फेवरेट, सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए. So ये आपको काफी एडवांटेज देगा in your future. So that is why I generally try to teach cell biology. Okay, but since you are non-serious and non-reciprocative, you don't have simple courtesy even to wish your teacher. So that is why generally when I am also disinterested and I may teach normal things. So always remember to get the best out of the teacher.
the student has to be also practically best, not theoretically best. Okay, so this is the basic difference between cytology and cell biology. So in schools generally we read cytology, but here my focus is to teach you some cell biology. चलिए, तो अब इसी का डिटेल हम डिस्कशन करेंगे आगे. सो टुडे आवर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू गो इनटू द डिटेल्स of the prokaryotic cell. But before that, I will give you some timeline and history of the cell, which is very important. तो उसमें क्या है, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनेल कब कब डिस्कवर हुआ एंड किस किस ने डिस्कवर किया. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो ये पहले से ही हम लिख लेंगे, उससे होता क्या है, उसको याद रखना आसान हो जाता है एंड ये एक स्लाइड बन के आपके पास रह जाएगा. सो दिस इज द टाइमलाइन of discoveries in the field of cell biology. है कि नहीं? तो ये जो चीज आज हम पढ़ेंगे, so this is what we will study today. Okay? So इसीलिए ये आप स्लाइड्स याद रखेंगे, क्योंकि इस आज का ये जो स्लाइड पे ही आपका कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एनी एग्जाम्स में आ जाएगा. सो वी विल गो विद द नंबर्स. तो सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन, actually you know that Robert Hooke in 1665 first viewed the cells under the microscope, and hence he is credited with the discovery. It's not a membrane, actually this is cell wall. Cell wall. So he is actually credited with the discovery of the cell wall. ठीक है. उसके बाद सेकेंड टर्म है सेंट्रियोल. So this was discovered by Edward Van Benden in 1883 and was described and coined by Theodore Boveri. Please remember, आपको ईयर्स रटने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए पहले जमाने में ईयर्स पे क्वेश्चन आया करता था, आजकल नहीं आता है. तो आपको आजकल रटने का कोई जरूरत नहीं है, बट यस यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स. तो नेम्स आपको बाकायदा याद होना चाहिए. सो सेल वॉल टर्म वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक, बेसिकली गिवन. सेंट्रियोल जो है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड वैन बेंडेन and the term was coined by Theodore Boveri. Okay, so he coined the term. उसी का बाद सेंट्रोजोम. वी ऑलरेडी नो दैट सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होता है कि नहीं? सो सेंट्रोजोम वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड वैन बेंडेन in 1883 and same it was also the term was coined by Theodore Boveri. Sir, हाँ बोलो. तो just out of curiosity, सर वैन बेंडन ने जब सेंट्रियोल डिस्कवर किया और सेंट्रोसोम डिस्कवर किया तो उन्होंने उसे क्या बोला? वो उन्होंने कुछ बोला होगा, वो मेरे को भी ध्यान नहीं है. दैट आई हैव टू आल्सो सी. ओके, बट द टर्म सेंट्रोसोम वाज कॉइन्ड बाय योर Boveri. I'll check out, because for that you have to study Van Benden's history. Okay, so these things are available, but I don't have the data. चलिए, तो साइटोस्केलेटन जो है उसमें निकोलाई कोल्सॉव किसी किसी में है, जैसे जो मोर इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है हम जानते हैं अलग अलग ने क्या क्या कहा, बट इन सेंट्रोजोम आई डोंट हैव एन आइडिया. चलिए, तो निकोलाई कोल्सॉव ही गेव द टर्म व्हेन ही डिस्कवर्ड द कांसेप्ट ऑफ साइटोस्केलेटन and proposed that shape of cell is determined by the tubular network, the cytoskeleton. जो शेप ऑफ सेल है, क्योंकि जनरली जो एनिमल सेल स्पेशली द शेप ऑफ एनिमल सेल इज ड्यू टू साइटोस्केलेटन. ओके, आप इसमें लिख सकते हो, यू कैन राइट साइटोस्केलेटन द शेप ऑफ एनिमल सेल. ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हैं.
is determined by the cytoskeleton. However, the word was introduced by Winterberg, okay, in French. फ्रेंच में साइटोस्केलेट, ओके, उससे उसका टर्म का नाम पड़ गया, ठीक है. सो दैट इज व्हाट ही कॉल्ड देम साइटोस्केलेट, ठीक है. नाउ उसी तरह से और भी हमारे पास वर्क्स हैं, ओके. तो नाउ साइटोस्केलेटन हम जानते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ओके. तो दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. तो उसका जिक्र हम कर लेते हैं. ओके, तो there are 3 types of cytoskeletons: microtubules, okay, microfilaments and intermediate filaments. Now जो microtubules है, that term was basically coined by D. Robertis and Franchi, who discovered them in nerve cell, and later Sabatini, Banch and Barnett explained their detailed structure. समझ रहे हो? डिटेल स्ट्रक्चर मतलब उसका जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है उसका डिटेल डिस्कस किया था सैबेटिनी, बेंच एंड बार्नेट ने. माइक्रोट्यूब्यूल्स वाज डिस्कवर्ड बाय कॉन, ओके. तो कॉन डिस्कवर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स इन 1968 इन अकैंथमीबा कैस्टेलानी. ये एक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट. नाउ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ओके, तो was basically discovered by the group of Holzer in 1968, ठीक है. तो ये आपके कुछ साइंटिस्ट्स हैं. नाउ तो वी हैव टू रिमेम्बर बेसिकली दैट जो माइक्रोफिलामेंट्स है वो आपके 3 टाइप के होते हैं. इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स जनरली डू नॉट हैव, ओके, मींस आपका साइटोस्केलेटन. उन इस इंस्टेड दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड सेल वॉल, है कि नहीं. चलिए, तो उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज साइटोसॉल, है कि नहीं. तो साइटोसॉल जो टर्म है, साइटोसॉल टर्म वाज डिस्कवर्ड इन 1835, ओके. गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत हिस्ट्री है, यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं. जब हम लोग ऑर्गेनल डिटेलिंग करेंगे वहां जीरा का सिरा हम निकालेंगे, अंडरस्टैंड. तो इसलिए हियर ओनली द इंपॉर्टेंट नेम्स आई एम यूजिंग, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ इस टेबल पे एक क्वेश्चन आएगा. अभी रिसेंटली एक एग्जाम कौन सा एक हुआ था बच्चों का, उसमें जो ये आकाश प्रकाश का टेस्ट नहीं हो रहा है, ये जो प्राइम 40 बच्चों का, उसमें हु डिस्कवर जो फोंटाना के बारे में आया था क्वेश्चन, अंडरस्टूड. तो इसलिए एक क्वेश्चन इसमें से आराम से आ जाता है. चलिए, तो साइटोसॉल जो है, तो दैट कंसेप्ट वाज, साइटोसॉल वाज डिस्कवर्ड इन 1835. नो सिंगल साइंटिस्ट हैज बीन गिवन द क्रेडिट, ओके. उसी तरह से कैमिलो गोल्गी, ओके, कैमिलो गोल्गी के नाम से पड़ गया क्या, गोल्जी बॉडीज, ठीक है. तो उन्हीं के नाम से गोल्जी बॉडीज नाम भी पड़ गया. लाइसोसोम, क्रिश्चियन डिड्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ऑलरेडी क्वेश्चंस में. तो डिड्यू इज बेसिकली द मैन बिहाइंड डिस्कवरी ऑफ lysosomes. A lot of Nobel prizes are also there, that also we will discuss someday. Now mitochondria जो है, it was first studied by Colliker, है कि नहीं. तो सबसे पहले कॉलिकर ने उसको पढ़ा था मसल सेल में, ओके, इन 1857. Richard Altman first recognized it, okay, as a cell organelle in 1894. The term mitochondria was given by Benda, okay. So Benda आपको भी मालूम होगा, 9th में आप पढ़े होगे.
So the term mitochondria was coined by Bender. उसी तरह से the term nucleus was coined by whom? Robert Brown. Okay, so Robert Brown has been credited with the discovery of nucleus. George Pollard. Okay, so George Pollard is credited with the discovery of ribosomes in 1955. Endoplasmic reticulum, because नेक्स्ट क्लास हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय क्लॉड इन बेल्जियम एंड कीथ पोर्टर at Rockefeller Institute. So two scientists are there, Albert Claude and Keith Porter ने उसको डिस्कवर किया. उसी तरह से वैक्यूल टर्म. ओके, तो वैक्यूल का डिस्कवरी was credited to Leeuwenhoek, okay, when he was studying bacteria, because in protists and lower organisms the vacuoles are much attractive and better visible. Plastid's term was coined by Haeckel. Okay, so the plastid term was coined by Haeckel in 1866. However, Schimper gave the term chloroplast. Okay, was the first to clear the definition, and also he was the first person to give the term chloroplast. Okay, now nucleolus was discovered by Fontana. आज मैं बता रहा था अभी, ये already exam में आ चुका है, Felix Fontana. So he is basically credited with the discovery of nucleolus. Chromosomes were first discovered by Nageli in 1842. Carl Wilhelm von Nageli. Okay, so he is credited with the discovery okay, of the concept of chromosome या term chromosome. ठीक है. So these are some basic discoveries. तो जो हम लोग को लिखना था. Okay, and it's very important to remember them because a lot of times they are visible in the question. कोई से डिड्यूब ने किसको डिस्कवर किया था, या इसने किसको डिस्कवर किया था, उसने किसको, ये आ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है. मोर डिटेल जब हम लोग इंडिविजुअल ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो उसका फिर डिटेल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ we have discussed the concept of what? Discoveries. So now we will go to the next topic, that is called prokaryotic cell. ठीक है जी? So we will go to that concept of prokaryotic cell. I'd like to show you a photograph before entering into the topic. We have already discussed something in a nutshell, but now we will do the detailed study. ये माथा कहीं चार्ज है. So now we will study the detailed study of prokaryotic cell. So ये जो structure हम देख रहे हैं, so this is basically the prokaryotic cell as a drawing. ये एक leveling है, not the original cell. Clear? So here you are seeing the structure of a prokaryotic cell. Now, so अब इसमें आप देख रहे हैं very beautiful the outer layer है कि नहीं, तो उसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे बाहर से अंदर. ठीक है, तो फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स हम लोग आएंगे. तो सबसे बाहर आप क्या देख रहे हो? दिस येलो स्ट्रक्चर. सो दिस येलो स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, या sometimes we can also call it cell envelope. है कि नहीं? तो ये ग्लाइकोकैलिक्स है. उसके बाद नंबर 2 आ जाएगा आपका सेल वॉल, and you know that this cell wall is basically made up of peptidoglycan. After cell wall we have this blue color structure is visible here.
So that is called the plasma membrane. Okay, so the blue color structure is called plasma membrane, cell membrane या plasma lemma. उसके बाद जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस एंटायरली इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, दिस इज द फोर्थ स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म है. And very crystal clear you can see the fifth structure, that is called the genetic region, yeah, nucleoid region. So this is the site where the DNA is found. है कि नहीं? अब बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल्स आप देख रहे हैं. So this is the sixth structure that we are seeing. They are called ribosomes. है कि नहीं? Now उसके बाद you are finding numerous hairy structures. So this numerous hairy structures is called pili या फिम्ब्रिए. हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. ओके, दिस इज द पिली और फिम्ब्रिए. एंड ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हो, दिस इज द फ्लैजेला. तो फ्लैजेला आप इसमें देख रहे हो एक तरफ होता है, ओनली वन टाइप. सो इसको हम लोग मोनोट्राइकस कंडीशन कहेंगे. अंडरस्टूड? And this is the flagella. So these are the different things we can see in a general what? Prokaryotic cell. More detail we will discuss when we go inside the topic. Anything you want to ask, you can ask, otherwise we'll go in. So the cell capsule is equal to cell envelope. We can say there are concepts, but in a general view आप कह सकते हो cell capsule, cell envelope, glycocalyx. है? और बोलिए. Because again we have to be very sure that we are talking about cell, prokaryotic cell. क्योंकि अलग अलग सेल में we can have different terminologies also. So इसलिए prokaryotic cell हमें जहन में होना चाहिए. I would like to show you another structure, another simple structure जो कि आप draw कर सकते हैं. Because you should be able to draw it in the schools as a very beautiful diagram. We can easily draw. I don't think it is not drawable. है कि नहीं? ये बन जाएगा कि नहीं? आप देखिए. So it's a very simple structure for us to draw. Now, तो I'll just box it round. तो आपको पता चलेगा कि इतना ही हमें बनाना है. Clear? So this is your prokaryotic cell. Very simply drawn. Outermost structure is again shown here. They are using the term capsule. है कि नहीं? तो यहाँ वो टर्म कैप्सूल यूज कर रहे हैं. इंस्टेड में हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. फिर आपका सेल वॉल आप जानते हो. ये सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? पेप्टिडोग्लाइकैन. ठीक है. दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन. Plasma membrane is similar. This is made up of क्या? Lipid bilayer. Okay, with होपानॉइड्स. क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के जगह पर होपानॉइड्स होंगे. अंडरस्टूड? तो ये आपको याद होना चाहिए. उसके बाद मीजोजोम्स. हमारे पास दो अलग अलग तरह के मीजोजोम्स हैं. ये जो मीजोजोम दे रहा है ये आपका रेस्पिरेटरी मीजोजोम है. तो इसको आप और अदरवाइज क्या कह सकते हैं हम लोग? बोलिए. सो दिस वी कैन ऑल्सो कॉल द रेस्पिरेटरी सेंटर. एक और मीजोजोम है जो डीएनए को पकड़ के रखता है. प्लस राइबोसोम्स इसमें आपको दिख रहा है साफ. तो ये कौन से राइबोसोम्स हैं? 70S is equal to 50S plus 30S. ठीक है. 50S plus 30S. ओके. प्लास्मिड. प्लास्मिड को हम लोग क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा
क्रोमोसोमल डीएसडीएनए, ओके, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये इन एडिशन टू जेनेटिक मटेरियल होता है। बैक्टीरियोफ्लैजेलम, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन, ओके, प्रोटीन, सो नो, ओके, 9 प्लस डैश अरेंजमेंट। क्यों 9 प्लस डैश अरेंजमेंट किसका होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। तो सिंस ये क्या, तो सिंस ये आपका, इसको छोटा कर देते हैं, दिस इज मेड अप ऑफ योर फ्लैजेलिन प्रोटीन, यू विल नॉट फाइंड द 9 प्लस डैश अरेंजमेंट। ओके, इसको यहां रख देते हैं। अंडरस्टूड? पिली इज डिफरेंट, सेक्स पिली इज डिफरेंट, इसलिए ये कैटेगरिकली हम यहां बोल देंगे, ओके, ब्रैकेट में, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ क्या, सेक्स पिली, ओके, सो नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ सेक्स पिली। तो उसका फंक्शन अलग होता है, इसका फंक्शन अलग होता है। न्यूक्लियोइड क्या है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ओके, सो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। So this is the uniqueness of your nucleoid, not arranged into chromosomes. Okay, double stranded circular DNA not arranged into chromosomes. Therefore, okay, number of chromosome is equal to 1. तो सिंस उसमें कोई क्रोमोसोम कंसेप्ट नहीं होता है, हम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या कहते हैं? 1। तो अब बच गया आपका साइटोप्लाज्म। तो देख रहे हो, तो आप देखिए, ये एक फिगर भी अगर आप देख लोगे तो हमारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड? इफ यू जस्ट सी द फिगर, योर एनसीईआरटी इज क्लियर। ओके, चलिए, सो नाउ वी विल गो इनटू द एनसीईआरटी डिस्कशन। So I have NCERT open for you. So we will discuss that topic. Okay. Because as a routine, we have to wind up NCERT line by line. तो इसलिए वो वाला पार्ट भी हम खत्म कर देंगे। So prokaryotic cells we will underline. तो आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेगा, तो जो मैं अंडरलाइन करूंगा वो भी आप अपने कॉपी में लाल पीला कर देंगे। अंडरस्टैंड? सो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है। सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, बीजीए, ओके, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब आपका रिप्रेजेंटेशन है। दे आर जनरली स्मॉलर and multiply more rapidly than eukaryotic cells. Okay, because you know very simply that since they are smaller, they are metabolically very active, they get ready for reproduction very active, they accumulate mass very fast, and as they accumulate mass very fast, they become larger in size. Now the metabolic rate decreases. In order to maintain the metabolic rate, they have to divide. ठीक है? may vary greatly in size and shape. ओके, तो 4 बेसिक शेप्स जो है बैक्टीरिया में क्या है? बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, एंड स्पिरिलियम इज स्पाइरल। तो कोकस जो है ये ऐसे गोल होगा। ओके, तो जस्ट लाइक दिस। Okay, the coccus will be circular, okay, and the bacillus is rod like. तो अगर हम लोग सिर्फ ड्राइंग करें उधर,
नाउ तो बैसिलस क्या होगा, वो ऐसे रॉड शेप में होगा, तो दिस इज अ बैसिली। कोकस जो है वो फुल स्टॉप जैसे होंगे। विब्रियो क्या होगा, वो कॉमा शेप्ड होगा। एंड स्पिरिलिया वो इस तरह से स्पाइरल होंगे। फाइन, सो दिस इज द बेसिक शेप of the prokaryotic cell. Now the organization is fundamentally similar with क्या, eukaryotes। उसी तरह से so next we'll go। Now prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane। Okay, cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। तो जो except in mycoplasma है उसको आप अंडरलाइन कर देंगे, except in mycoplasma। Understand? Now जो आपका fine, so the fluid matrix filling the cell is the cytoplasm। There is no well-defined nucleus। Genetic material basically naked, not enveloped by nuclear membrane। In addition to genomic DNA, many non-genomic DNA भी हो सकता है जिसको हम प्लास्मिड्स कहेंगे। Okay, so it may be, it is not a rule। In addition to genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. They are called plasmid। Now, the plasmid DNA confirms certain unique importances। Okay, like तो plasmid DNA आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, और भी है वो हम लोग पढ़ते समय पढ़ेंगे। क्लियर?